Assalamu alaikum and very good morning to all of my lovely students. I'm Dr. Tahira Akbar and today I'm going to discuss about the importance of English with my students. First of all, we have to realize this fact that all languages are very important, and the purpose of languages is not to impress somebody or not to depress someone. The purpose is just to communicate, just to exchange your views and your ideas, your emotions with the rest of the people around you in a very clear way, in a very concise way, in a very impressive way. So, better to use the English for a good purpose. It shouldn't be used to say in a negative way to someone that he is not able to communicate in that particular language, because might I know two languages, the other person know more than two languages, so there is no comparison. It's a knowledge, it's an understanding. The more you learn, you more to able to get the information about it. So the question is that why English is considered a bit difficult for the people. Even for the people, yes, we know and I realize that this is not our mother tongue. This is the second language which we learn. But question is that either our first language is perfect? No, not at all. If I ask you something in Urdu, which is the mother tongue of all of us, जो हमारी पहली ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, if I ask you कि दही मुज़क्कर है कि मुअन्नस, अखबार मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तो even you will start pondering over it कि ऐसा ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, ये क्या है. But we use these words in our daily life without understanding कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है. So just like Urdu, English for the first learner, for the people who have their native language English, they also start thinking, start speaking, exchanging ideas in this language without considering all these bits and bytes which we don't consider in an Urdu. But when we are the second learner of English, then we have to consider all these things which are very important for us. Sometimes students come to me and they say, oh my God ma'am, you gave me no mark at all. There was only one mistake of a letter in the word and you crossed it. So my dear, this is not the question or the matter of one wrong letter or alphabet that's altogether changed the meaning and understanding of the word. For example, look at the board and you might be able to realize this thing later on very easily after this. Look at this. हम दुआ लिखते रहे, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे. एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया. Now, if you look at this, so you might be able to understand very well that what is that हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे. एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया. So this is the matter of one dot only, but it altogether changed the meaning. Dua and daga, mujrim and mahram. So just like one dot, the mistake of A, E and I, they all are equally important and we cannot deny this fact. Sometimes we want to speak up, but we feel shy, we are a bit hesitant. Yes, I know very well that most of the students can easily write down the essays in beautiful style, but whenever they are asked to speak up something, they become very reluctant and feel shy. What is the reason? The reason is they lack the practice. You never know the grammar of Punjabi, you never know the grammar of Urdu, but you speak up so fluently. Reason, the daily practice of these languages. Your mouth, your tongue, your teeth, your jaws
your nasal activity, your throat, lungs, all these parts of the body are involved in continuous practice which you keep on doing in your life regarding Urdu and Punjabi. लेकिन इंग्लिश बोलते हुए रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, यू फील शाय, यू बिकम हेजिटेंट कि मैंने गलत बोल दिया तो दूसरे लोग हंसेंगे, मेरा एक्सेंट सही ना हुआ तो मेरा मजाक बन जाएगा. यू शुडंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इफ़ यू गो फॉर द एक्सेंट तो इंग्लिश के बेशुमार हैं. अब कौन कौन सा एक्सेंट लेंगे. इफ़ यू गो फॉर द प्रोनाउंसिएशन तो वो तो इतनी गलतियाँ हो जाती हैं, उर्दू में हम इतने गलत बोलते हैं कि हमें इंग्लिश का तो हम सोच भी नहीं सकते. सो नेवर बॉदर फॉर दीज थिंग्स. द फर्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू टेल टुडे टू माई स्टूडेंट्स इज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट एनी रिलक्टेंस. सोचे बगैर कि लोग हंसेंगे. क्यों हंसेंगे. वो सब अंग्रेज़ की औलादे तो नहीं है. दे लर्न इंग्लिश. और अगर स्पेशली द फर्स्ट स्टेप आई टेल यू टू स्टार्ट स्पीकिंग विद योर क्लास फेलोज. कोई बच्चा नहीं हंसेगा. दे ऑल आर स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट का मतलब ही यही होता है कि वो इल्म के हसूल के लिए आया है. तो ही नीड्स नॉलेज. तो जो नॉलेज के हसूल में हंसे, दूसरे का मजाक उड़ाए, वो फिर तालिब इल्म की कैटेगरी से निकल जाता है. आपने अपना सोचना है. टॉक टू योर यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर एट होम इन इंग्लिश. Stand in front of the mirror. Talk to yourself in English. And one most important thing, start learning English newspaper. Because there are many important words which usually you cannot speak up in English, but you know in Urdu. And we keep on using these words in our daily life many times. लेकिन अगर उनका इंग्लिश में मतलब पूछ लिया जाए तो बच्चे नहीं बोल पाते, बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते. Although they know Urdu very well. The reason is न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी. They usually say कि जी हम मूवीज़ देख के और डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ताकि इंग्लिश अच्छी हो. येस, नो डाउट अबाउट इट. आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करेगी, लेकिन जो डेली लाइफ वोकैबुलरी है वो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से मिलेगी. एक चीज़ को आप रोज़ न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आती हैं, रेपिटिशन होती है वही. मुल्क में महंगाई है, आज तूफ़ान आ गया, आज यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आज यहाँ पे लोगों ने ये सोशल एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है, आज लोगों ने ये अमल अंजाम दे दिया, आज मुल्क में हमारी इकॉनमी की स्टेबिलिटी आ गई है, आज यहाँ पे धरना हो गया, आज यहाँ पे लोगों ने मिल के अपने मफाद के लिए आवाज़ को बुलंद किया. ये मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ की बुनियाद पे होती हैं. एंड इफ़ यू कीप ऑन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस तो बिलीव यू मी कि आपको एक बहुत अच्छी डेली लाइफ वोकैबुलरी मिल जाएगी ग्रेजुअली. और आप फिर उसको यूज़ करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में. अगर आप दिन में उठ के सोच लें कि मैंने आज 4 लफ्ज़ इंग्लिश के अच्छे अखबार में से पढ़ लेने हैं, कीप ऑन मेमोराइजिंग दीज वर्ड्स. रात को सोते हुए when you're lying on the bed, just repeat those words. उनकी रिवीजन करते रहे. छोटे बहन भाइयों के साथ वो वर्ड्स यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें. ट्राई टू एनहांस योर वोकैबुलरी लाइक दिस. But otherwise there are many words which we use in our daily life many times, but if I ask my students that what is the spelling of this word, तो वो थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचते हैं कि इसके स्पेलिंग ये होंगे कि वो होंगे. फॉर एग्जाम्पल, टेक द वर्ड, very easy word which we usually use in our daily life. This is stationery. Stationery and stationery. Now there are two difference of only A and E. A and E. Stationery and stationery. Then what is the difference? So usually students get confused. कि एक का मतलब साकिन है, एक का मतलब किताब, कलम, कॉपी है. तो क्या ए और ई के स्पेलिंग से सब कुछ उलट हो रहा है? तो दे बिकम कन्फ्यूज्ड कि इसका सही क्या होगा. तो समटाइम्स व्हेन यू फील प्रॉब्लम इन रियलाइजिंग दीज थिंग्स, तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स आप अपने लिए बना लें, अपनी ज़ात के लिए. तब तक वो ट्रिक्स आपकी मदद करेंगी जब तक कि आपको बिल्कुल ये अजबर नहीं हो जाती चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ई. यू टेक दैट वर्ड किताब, you write किताब.
एंड दूसरा स्टेशनरी है, जिसका मतलब साकिन होता है। आप साकिन लिखिए। अब दोनों को पढ़िए। आप एक कह रही है किताब, किताब, जेर आ रही है ना, जेर, किताब, कताब तो वर्ड ही गलत है, किताब। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी, ERY, किताब। और दूसरा आ गया साकिन, सा जबर आ रही है, तो स्टेशनरी, स्टेशनरी, ए आ रहा है जहाँ पर स्टेशनरी, तो साकिन, ARY, किताब, ERY। तो छोटी छोटी सी टिप्स आप खुद अपने लिए बना सकते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन के साथ, और वोकैबुलरी को अपने इन्हांस कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। लैंग्वेज लर्निंग एक बहुत ही मज़ेदार अमल होता है, बट इफ़ फर्स्ट यू टेक द डिसीजन that you will not feel shy in learning any language, और आपने उसको लर्न करना है अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेजेस होंगी उतनी ज़्यादा आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोगों के साथ आपके रवाबित में इजाफा होगा। सो ऑलवेज टेक लैंग्वेज एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट गो फॉर एनी पर्टिकुलर एक्सेंट, बिकॉज दिस विल मार एवरीथिंग। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, डिप्रेस नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन का काम पूरा करना है। सो नेवर थिंक दैट यू कैन नॉट एक्सेल इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द डिसीजन दैट यू आर ए स्टूडेंट। और तालिबे इल्म, जिसको तलब होती है इल्म की, वो कभी भी हेजिटेंट नहीं होता। वो इस बात से नहीं घबराता कि लोग मजाक उड़ाएंगे। लोगों का जो काम है उनको करने दें, जो कुछ नहीं करता वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। आपने बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। सो बिलीव दैट यू कैन डू, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड बी डिटर्मिन्ड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।